ध्यान दो। किसी दिन आप 12 की जगह 14 घंटे फ्लो पे पढ़ाई कर लेते हो। 12 मतलब मिनिमम 12 है, मैक्सिमम 14 तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मर नहीं जाओगे। कोई भी आदमी आज तक पढ़ाई करने की वजह से नहीं मरा है, तो चिंता मत करो। So see, there is this query where it has been asked that okay, sir, my English is very simple when I write. Is it okay or I should use very high-fi English in essay? Okay. Hello friends, my name is Vinay, and once again I am here to discuss about the strategy regarding the CAPF 2022 exam. Okay. So I'll be keeping this simple and short, because already we are running out of time. It is 20th of June already. We have got some 40 days, I think, to work on what we are doing already. Okay. Why I am talking in terms of number of days? I have already told you in my previous videos that we should not calculate the time remaining for our study in terms of days, but in terms of number of hours. So if we calculate number of hours, then if we say 10 hours, oh no, 10 hours are not sufficient to study in these days. We are supposed to study 12 hours per day. Actually, if you people are really damn serious about this exam, which is going to take place on 7th of August 2022, then you must be very serious and you should be preparing it for 12 hours. So in this session, in today's session, we are going to discuss two things. First, what needs to be done in these days, these upcoming days, and at the same time we are also going to handle some of the queries raised by the students while preparing for this exam, right? So watch till the last, and in this short video we will be discussing about what should be my strategy in these upcoming 40 days for both paper 1 and paper 2. Okay, so let's start. Okay, so first thing first, I have been delivering some lectures at different intervals so that it can help you to prepare for this exam, right? So if you have not watched earlier videos, I would recommend to watch earlier videos, right? Now I have promised in my last video, I think, that I'll be taking some lectures based on your queries, right? So I'll be discussing few of the queries raised by the students. Okay, so let's go and look at them one by one. Okay. So see, there is this query where it has been asked that okay, sir, my English is very simple when I write. Is it okay or I should use very high-fi English in essay? Okay. Now again, let me tell you, we are not writing a paper of literature, right? My intention is to convey a set of information, a concept, an idea, right, to the examiner. So simple English will do. You don't have to worry too much about high-fi English. If your English is good, like there are many students who belong to English medium or their writing skill is good. So if they are using some like what we can say, wonderful vocabulary, it's fine. But even if you don't have those extraordinary words, but you can convey what you want to convey, then it's fine. And again, at the end of the day, let's assume that if you are writing an essay on IR, international relations, or based on some social issues, so every subject have its own, what we can say, terminology. So definitely we have to use that, right? So you should be focusing on that, and don't worry about high-fi English. Simple English will do, right? So you don't have to worry about that. So I think this is clear, all of you. Actually, see why this question is important, because if we talk about Hindi medium students who are actually struggling on both the ends, they are struggling on the end of content which they don't have or they are lacking, then this is everybody's fight, right? People are lacking content and still don't have the confidence to write essay or argument. But Hindi medium students have to fight on two levels, first on content level and second on the language level. So maybe they are writing essays in Hindi, which is fine with them, but when it comes to argument writing and report writing and pressy writing, they have to face some problems, right? So in fact, one of the queries is there. This was asked by a Hindi medium student, and definitely that student represents all the fraternity of Hindi medium students. How to develop skill of argument and report? As a Hindi medium student, they are asking me this question. So let me address this in Hindi. In fact, देखिए, मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ, इसका मतलब मैं वीक हूँ ऐसा समझना बहुत गलत है. बस हमें क्या करना चाहिए कि मुझे जो प्रॉब्लम है उसको
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि मैं वो जो प्रॉब्लम है उसको ठीक से समझूं। मैं जानता हूं कि ऐसे तो मैं हिंदी में लिख लूंगा, लेकिन आर्गुमेंट और रिपोर्ट तो मुझे इंग्लिश में लिखना है, प्रेसी भी मुझे लिखना है इंग्लिश में, लेकिन प्रेसी का पैसेज आपके सामने होता है। मैंने आपको एक वीडियो में डिफरेंस बताया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 3 क्वेश्चंस एंड लास्ट 3 क्वेश्चंस। जो पहले 3 क्वेश्चंस है ऐसे आर्गुमेंट एंड रिपोर्ट, उसमें सिर्फ टाइटल दिया हुआ है एंड यू हैव टू डिलीवर द कंटेंट बाय योरसेल्फ, द कंप्लीट कंटेंट। प्रेसी और कॉम्प्रिहेंशन में वैसा नहीं है, आपके सामने पैसेज होगा और आपको वहां से चीजें निकालनी है। इवन दो दैट इज नॉट सिंपल, यू हैव टू वर्क ऑन दैट, लेकिन कंपैरेटिवली वो आसान है। लेकिन आर्गुमेंट और रिपोर्ट राइटिंग ऐसी 2 चीजें हैं जो आपको इंग्लिश में ही लिखनी है और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल चीज हो जाती है। इसके लिए एक सजेशन मैं बस ये देना चाहूंगा, खैर उसके लिए अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, उसकी प्रैक्टिस आपको एक्चुअली शुरुआत से करनी चाहिए। मतलब 1 साल पहले जब आप प्रिपरेशन शुरू करते हो तब आपने उस पर काम शुरू करना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या मैं ये समझ पा रहा हूं कि जब आर्गुमेंट और रिपोर्ट राइटिंग मुझे करनी है तो मेरे पास देयर आर 2 लेवल्स ऑफ प्रॉब्लम्स, 2 दिक्कतें हैं। लेकिन मैं क्या करता हूं, दोनों दिक्कतें को मिक्स कर देता हूं और फिर वो प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देता हूं। अगर मैं उस प्रॉब्लम को डिवाइड करूं तो शायद मैं थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ सकता हूं। तो क्या 2 लेवल है? पहला लेवल तो ये है कि कंटेंट का प्रॉब्लम है और दूसरा लेवल है कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, और हम दोनों को मिक्स कर देते हैं और फिर हम इतने हमारा मोरल डाउन हो जाता है, हमें लगता है भाई मुझसे नहीं होगा। तो एक उसके लिए सोल्यूशन ये है, मतलब आपको बात समझ में आ रही है? आई होप दैट यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पकड़ लो, अगर मुझे आर्गुमेंट लिखना है, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूं, अब मुझे आर्गुमेंट लिखना है इंग्लिश में, लेकिन पकड़ लो अगर कल मुझे ये बोल देते कि आर्गुमेंट तो हिंदी में ही लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, तो भी क्या मेरे पास पूरा कंटेंट था? है ना? मुझे लगता है प्रॉब्लम इंग्लिश का है, लेकिन प्रॉब्लम कंटेंट का भी तो है ना। प्रॉब्लम कंटेंट का है, प्रॉब्लम वोकैबुलरी का है ना? तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है, एक छोटा सा नुस्खा मैं बताना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स क्या करें कि सबसे पहले पकड़ लीजिए आपको टॉपिक मिल गया, तो अभी तो घर पे जब आप बैठे हो तो आप उस टॉपिक को गूगल पे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं रिकमेंड ये करता हूं कि सबसे पहले आर्गुमेंट हिंदी में ही लिख के देखिए, रिपोर्ट भी हिंदी में लिख के देखिए। अब आप बोलोगे सर उसका फायदा क्या है, एग्जाम में तो इंग्लिश में लिखना है, मैं जानता हूं, लेकिन लैंग्वेज का जो बैरियर है उसको बाद में डील करेंगे। मतलब बाद में मतलब हमारे पास अभी बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, और मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आप ऑलरेडी जो मैंने पिछले बार जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको फॉलो कर रहे हो। लेकिन हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा एक बार ट्राई तो करो, एक बार हिंदी में लिख के तो देखो, उससे मुझे ये समझ में आएगा कि प्रॉब्लम सिर्फ लैंग्वेज का है या मेरे पास एक्चुअली कंटेंट ही नहीं है। बहुत बार मेरे पास कंटेंट नहीं होता है और मैं उसको लैंग्वेज का प्रॉब्लम बना के फेस करते रहता हूँ और बोलते रहता हूँ कि भाई अरे यार ये क्या कर सकते, लैंग्वेज की वजह से मुझे दिक्कत हो रही है। एक बार हिंदी में ट्राई तो करो, फिर आप उसको हिंदी में लिखो, रिपोर्ट भी हिंदी में राइटिंग प्रैक्टिस करो, रिपोर्ट राइटिंग की भी, और फिर उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। देखो कि लैंग्वेज का कितना प्रॉब्लम आ रहा है, तब आपको एक्चुअल प्रॉब्लम समझ में आएगा। और मैं जानता हूं कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम है ही, लेकिन आपको उसके लिए दुगनी फाइट देनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इसके अलावा मैं आपको एक बात बोलता हूं, अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि सर मैं अभी उस चीज को करूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग बहुत अहम हिस्सा है एग्जाम का। मुझे लगता है लाइक 40 प्लस 20 60 मार्क्स, ह्यूज नंबर, you can't skip that, you have to attempt that and you need to do it properly to get better marks। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, मतलब मैं उनका मोरल डाउन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मतलब कंटेंट के लेवल पे भी लड़ना है, लैंग्वेज के लेवल पे भी लड़ना है। और अगर आपको लगता है कि आपने अभी जस्ट सब कुछ रिसेंटली स्टार्ट किया है तो आपका वो सीन है ही नहीं, वो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था। तो आप अभी से मेहनत करो, अभी से शुरुआत करो और अगले अटेम्प्ट श्योर ऑफिसर बनोगे, इसको इंश्योर करो, ठीक है। तो ये एक क्वेरी था जो मुझे बोलना था। उसके बाद एक बहुत ही अजीब क्वेरी किसी ने पूछी है, लेकिन वो बहुत सारे लोगों का है, इसलिए मैं उसको एड्रेस कर रहा हूं। वो ये है कि कैन वी स्किप मैथ्स इन पेपर 1 बिकॉज आई एम वेरी वीक इन मैथ्स। तो भाई ये कोई बात नहीं हुई। मतलब देखिए, मैं जानता हूं कि यू पीपल आर वीक इन मैथ्स, लेकिन यूपीएससी जो पूछ रही है दे आर नॉट बेसिकली लाइक इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स या कुछ एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकोनॉमिक्स में जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं या फिजिक्स में मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, वैसे नहीं है। यू डोंट हैव टू बी रामानुजन, है ना। सिंपल कुछ जो प्रॉब्लम्स होते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के, वो पूछते हैं। अगर आपको लगता है कि सर मैं मैथ्स में बहुत वीक हूं और जब मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करने बैठता हूं तो मुझे नींद आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं, बस पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर निकालो, उस क्वेश्चन पेपर्स में जो जो टॉपिक्स पे सवाल पूछे हैं वो सवाल एक बार सॉल्व करके देखो बस। अगर मैथ्स के 20 सवाल पूछे हैं तो 10 क्वेश्चन पेपर के 200 सवाल हो जाते हैं अलग अलग टाइप के।
अगर आपने एक सवाल सॉल्व कर लिया तो उसी के बेस पे दूसरे नंबर्स लेके या थोड़ा सा सवाल को ट्विक करके जो कुछ सवाल आपको पूछे होंगे आपकी किताबों में जहां से आप प्रिपेयर करो उतने सॉल्व कर लो। मतलब सिर्फ क्वेश्चन पेपर में दिए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को एटलीस्ट सॉल्व करके जाओ, वो भी अच्छे से। और मैथ्स कोई रट्टा मारने की चीज नहीं है, उसकी बेसिक लॉजिक समझो। लेकिन आपके पास टाइम नहीं है और आपको डर लग रहा है तो आप सिर्फ एक काम करो, सिर्फ उतना करो, जस्ट क्वेश्चन पेपर में दिए हुए मैथ्स को सॉल्व करो, लेकिन उतना करके ही जाओ। क्योंकि आप पूरी तरह से किसी भी सेक्शन को स्किप मत करो। कभी कभी हम किसी चीज को स्किप करते हैं और हम डिपेंडेंट रहते हैं जीएस पे, लेकिन जीएस कोई भरोसे वाली चीज नहीं है। कुछ सवाल ऐसे आ जाते हैं कि अच्छा खासा जिसने पढ़ाई किया वो भी पूरा गोते खाने लगता है। तो मैथ्स थोड़ा बहुत करके जाएंगे। देखो मार्क्स बटोरने हैं, जहां से भी थोड़े मिले ले लो। और आपको क्या पता, अगर पकड़ लो आपने थोड़ा समय मैथ्स के लिए दे दिया और अगर गलती से 20 में से आपको 5 भी सही आ गए तो यू कैन कलेक्ट 5 मार्क्स। सो डोंट स्किप इट, बट यू कैन स्किप एनीथिंग बट यू शुड नॉट। सो वर्क ऑन मैथ्स, एटलीस्ट वर्क ऑन क्वेश्चन पेपर्स। एक अगला सवाल है, सर मेरा पेपर 2 अच्छा है क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करता हूँ। दैट डज नॉट मीन दैट योर पेपर 2 शुड बी गुड इफ यू बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम, बट यस इन दैट पर्सनल केस जिसने पूछा होगा उसका अच्छा होगा, सो ऑल द बेस्ट। लेकिन मुझे पेपर 1 का डर लगता है। अब ये बहुत सही सवाल जो है वो पूछा है, पेपर 1 का डर लगता है, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। कितना भी पढ़े, समुद्र इतना सिलेबस है, कभी खत्म नहीं होता। अच्छा, जब लगता भी है कि मैंने पढ़ लिया है और पॉलिटी जैसा कुछ पढ़ते हैं और फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं और जवाब गलत हो जाते हैं तो लगता है भाई मैं इतने दिनों से पढ़ रहा हूँ, रिवीजन भी कर लिया, फिर भी सवाल गलत हो रहे हैं, तो वेयर डू आई स्टैंड एक्चुअली। तो वो डर खड़ा हो जाता है कि यार मतलब आगे का और कुछ पोर्शन मेरा करना बाकी है, लेकिन जो किया है वो भी याद नहीं आ रहा है, उसके बेसिस पे भी सवालों का जवाब नहीं आ रहा, तो मेरा एग्जाम में क्या होगा। और वो डर जो है वो बिल्टअप होते रहता है एंड दैट लीड्स टू नर्वसनेस व्हिच इज अगेन प्रॉब्लमेटिक इन ऑल दीस डेज। एक्चुअली मुझे उस चीज को भी एड्रेस करना है आज के सेशन में कि कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली भी फोन करके बोला है कि सर नर्वसनेस फेस कर रहे हैं, एक प्रेशर सा आता है, तो हाउ टू डील विद दैट। आई एम गोइंग टू गिव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर फॉर दैट क्वेश्चन, बट दैट विल बी लेटर। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि पेपर 1 का जो डर है तो वो देखो ऑब्वियस सा डर है, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो कोई ना कोई सवाल उल्टा सीधा आ जाता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन है। वी हैव लिमिटेशंस हियर, इनफैक्ट वी डोंट हैव लिमिटेशंस हियर, बट पढ़ने में लिमिटेशंस है, याद रखने में लिमिटेशंस है। तो ऐसा हमेशा होगा कि आप कितना भी पढ़ के जाओ कुछ ना कुछ रह जाएगा, बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, है ना। आपको जो है 250 में से 250 स्कोर नहीं करना है पेपर 1 में, है ना। 130 140 इज अ वेरी सेफ स्कोर, तो वहां तक आपको जाना है। लेकिन उसके लिए इसलिए मैंने अभी जो लास्ट क्वेश्चन का जवाब दिया, मेरा मैथ्स वीक है तो मैं छोड़ दूंगा, ऐसे क्यों करते हैं। 5 क्वेश्चंस का भी सही जवाब दे दोगे तो दूसरे कहीं गलत हो जाएंगे तो यहाँ वो लेवल कर लेंगे। यू नेवर नो कि कहां से आपको मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स मिल जाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू स्टडी एवरीथिंग। एंड रही बात पेपर 1 के डर की, तो वो ना थोड़ा सा ऑब्वियस भी है कि पढ़ते हैं फिर सवाल का जवाब नहीं आता, या फिर हमेशा ये लगते रहता है कि मैं भूल गया हूं, हमेशा ये लगना कि बहुत सारा बाकी है, फिर करंट अफेयर्स भी पेंडिंग होता है, फिर कोई आके कुछ बोलता है कि अरे तूने ये पढ़ा, क्या बात कर रहा है यार, वो पढ़ना तो बहुत जरूरी था। सो थिंग्स लाइक दैट कीप ऑन हैपनिंग, बट यू डोंट हैव टू वरी। आप बस अपना स्टेडीली जो चीज आपने किया उसको वापस बार बार करते रहो, रिवाइज करते रहो, और उतना काफी है। यू डोंट हैव टू फियर अबाउट पेपर 1, ओके। बिल्कुल डरने की बात नहीं है आप, लेकिन हाँ ये बात है कि सिलेबस पूरा कवर करो और उसको बार बार अच्छे से रिवाइज करो, ओके। रिवाइज कैसे करना है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। किसी बंदे ने ये भी सवाल पूछा है कि सर हाउ टू रिवाइज। आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दिस इन दिस लेक्चर, बिकॉज मैंने इसके बारे में एक स्पेशल सेशन लिया था जिसमें मैंने रिवीजन कैसे करना है उसके ऊपर एकदम बहुत स्पेसिफिकली डिटेल में डिस्कस किया है। तो प्लीज गो थ्रू दैट सेशन और वहां आपको ये मिल जाएगा कि रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। और वही बढ़िया तरीका है रिवीजन करने का। ओके, सो ये मेजर कुछ डाउट्स थे जिनको मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है। हाउ टू बैलेंस पेपर 1 एंड पेपर 2, ये एक जनरलाइज सवाल बहुत सारे लोगों ने पूछा है। कभी कभी मुझे लगता है आई रियली डोंट नो, मतलब यस देयर माइट बी सीरियस कैंडिडेट्स हु आर फेसिंग दिस इशू, राइट। ये सवाल जो है इसका एक ही सिंपल जवाब है। बैलेंस करने का दिक्कत तब होता है जब ये करूं कि वो करूं ये सवाल आता है, और वो सवाल तब आता है जब मेरे पास नंबर ऑफ आवर्स लिमिटेड है। और नंबर ऑफ आवर्स मेरे पास इसलिए लिमिटेड है क्योंकि शायद मेरी मेहनत करने की जो तैयारी है वो कम है। अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने बोला कि देयर आर 40 डेज
आखिरी के 7 दिन तो मैं पकड़ता ही नहीं हूँ, वो तो आपको पता भी नहीं चलेंगे कैसे चले जाएंगे, क्योंकि उतना आप प्रेशर में रहते हो, उतना सारा आपको काम करना है, उस वक्त बहुत सारी चीजें पेंडिंग होती है। तो 40 days आर देयर एंड मैं पढ़ता हूँ, सुबह उठता हूँ, अपना एक शेड्यूल भी फॉलो करता हूँ, कुछ लोग रात को भी जागते होंगे, लेकिन मैं आपको एक बात, सीधी बात बोलता हूँ, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, लेट मी बी वेरी ब्लंट। इफ यू आर नॉट स्टडिंग 12 hours a day, आई एम नॉट सेइंग 10, इवन 10 are not enough, 40 days बाकी है। इफ यू आर नॉट स्टडिंग 12 hours a day, sorry, you probably get selected but you not surely get selected। अगर आप 10 घंटा पढ़ते हो तो you might probably get selected। हो सकता है कोई बंदा 1 साल से कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा हो, तो उसके लिए शायद अभी 10 घंटा भी काफी है। लेकिन मैं जानता हूं ना, हम लोगों ने कब शुरू किया है, कितनी सीरियसली हम थे नोटिफिकेशन आने से पहले, उसके बाद हम कैसे सीरियस हो गए। तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ 12 घंटा पढ़ना ही है आपको। अगर कोई मुझे ये बोल रहा है सर आप कैसी बातें करते हो, हम तो वर्किंग है, छुट्टी ले लो भाई। देखिए, एक प्रायोरिटी होती है, और मैं जानता हूं कि हम साल भर छुट्टी नहीं ले सकते, इनकम सोर्स भी कमाना होता है, फैमिली होती है, एवरीबडी हैव अ डिफरेंट लाइक इश्यूज। बट इफ एग्जाम अगर 1 महीने पे आ गई है तो आप छुट्टी ले लो, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई ऐसा होगा जो साल भर से कंसिस्टेंटली वर्किंग करते करते कुछ अलग से पढ़ रहा है, उसका बहुत सारा अच्छा प्रिपरेशन हो गया, तो दे आर डिफरेंट स्टूडेंट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, आई एम टॉकिंग अबाउट सम एवरेज स्टूडेंट। बैलेंस कैसे करना है पेपर 1 पेपर 2? 12 घंटे पढ़ो ना। अगर मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूं तो 2 घंटा, वो तो मैंने मिनिमम बोला है, एक्चुअली अभी तो 40 दिन बाकी है, 3 घंटा पेपर 2 के लिए देना चाहिए। 3 घंटा पेपर 2 के लिए देना चाहिए, राइटिंग के लिए। और क्या करेंगे, और जो करना है वही बताने के लिए ये सेशन है। क्वेश्चन पेपर बेस्ड अप्रोच ऑफ स्टडी, ये मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। आप लोगों को जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है वो मैं जानता हूं, पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, स्टडी रूम में बैठ के पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, लेकिन मन नहीं लगता अभी, क्योंकि बहुत बार पढ़ चुके हैं, और पढ़ने से ज्यादा बार बार वो सवाल आते रहता है दिमाग में कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, एग्जाम पास में आ रहा है, नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, तो वो आते रहता है। उसको कैसे एड्रेस करना है, उसको ये जो नर्वसनेस आते रहता है, और देखो पहली बात तो ये नर्वसनेस आना बहुत नेचुरल और यूनिवर्सल दोनों है, सबको आता है और नेचुरली है, कोई उसमें कोई आप कुछ गलत नहीं हो रहा है आपके साथ। अगर आपको ये प्रेशर आ रहा है तो सही पकड़ लो, आप सही ट्रैक पे हो, मतलब आप एग्जाम को लेकर सीरियस हो, कम से कम इतना तो प्रूव हो जाता है, राइट। एक बात तो बोलना चाहूंगा, नर्वसनेस अच्छा है लेकिन उसको एड्रेस भी करना है थोड़ा। तो कैसे एड्रेस करेंगे, एक ही तरीका है, इतना बिजी बन जाओ कि वो सवाल आने के लिए, वो ख्याल आने के लिए, मतलब आपके माइंड को आप टाइम ही मत दो। ऐसा कैसे पॉसिबल है, बताता हूं आपको। आप लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि पढ़ाई करना मतलब पढ़ना, तो दिन भर स्टडी रूम में बैठ के पढ़ते हो, पढ़ते वक्त मन जो है वो घूमने जाता है, फिर वही मन सोचता है कि अरे नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि आप पैसिव हो। आप मन मतलब ऐसे तुरंत नोट्स बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, ऐसा नहीं करते ना, बस किताब लेके पढ़ने पड़ते हैं। अगर हम बहुत बिजी होंगे तो कैसे करना है, देखो वैसे भी पढ़ के भी पक गए हैं बहुत सारा, जो अगर पढ़ लिया होगा 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हीं के लिए मैं बात कर रहा हूँ इस सेशन में, है ना। जो अभी नए आया होंगे वो तो अगले साल की तैयारी करो भाई, है ना, अगले साल की तैयारी करो। ये एग्जाम आपके लिए नहीं है। जो 2 महीने या 3 महीने से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए एग्जाम नहीं है। 6 महीने कम से कम, एक्चुअली 1 साल आइडियल टाइम है, तब आप श्योरली हो सकते हो। 6 महीने वाले भी प्रोबेबल है, क्योंकि उन्होंने कितना घंटा पढ़ाई किया है मुझे पता नहीं, है ना। तो लाइक पढ़ के भी बोर हो गए हैं, ध्यान भी नहीं लगता, और फिर ऐसे भी लगता रहता है कि भाई पता नहीं मन नहीं लग रहा, या फिर उतना एफिशिएंसी नहीं आ रहा, और नया क्या ढूंढूं इसमें। तो अभी क्वेश्चन पेपर बेस्ड अप्रोच से जाना चाहिए। इसके लिए टेस्ट सीरीज लगाना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है पेपर 2 और पेपर 1 दोनों की टेस्ट सीरीज आपके एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट की है, जो आपको आपके एग्जाम को अनलॉक करेगी। तो क्वेश्चन पेपर 1 की बात कर रहा हूं, और क्वेश्चन पेपर का स्ट्रेटेजी कैसा है। टेस्ट सीरीज अलग अलग जगह पे जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है वो उठाओ, उनको सॉल्व करो, कोशिश करो प्रिंट आउट लेके आओ, घर पे बैठ के आराम से सॉल्व करो। कम से कम 4 घंटे का शेड्यूल उसका दे रहा हूं मैं अभी आपको। क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसको सॉल्व करो। जब आप घर पे होते हो तो आपका क्वेश्चन पेपर नॉर्मली 1.5 आवर में खत्म हो जाता है। वैसे नहीं होना चाहिए, एक्चुअली पूरा 2 घंटा आपने बैठना चाहिए, लेकिन हम लोग ना प्रेशर, घर में बैठे तो प्रेशर नहीं होता है, 1.5 घंटे में पेपर खत्म हो जाता है। इसमें भी एक चीज रिकमेंड करता हूं मैं, नॉर्मली एग्जाम में भी ध्यान में रखना,
2 राउंड कम से कम होने चाहिए। एक्चुअली 3 राउंड भी हो जाते हैं कभी कभी, जो कि अच्छी बात है। 2 राउंड होने चाहिए, मतलब पूरा क्वेश्चन पेपर के 125 क्वेश्चन मेरा एक्चुअली 1 घंटा 20 मिनट 1 घंटा 15 मिनट में खत्म हो जाने चाहिए, मैक्सिमम 1 घंटा 25 मिनट। बाकी बचे हुए 35 मिनट जो है, जो क्वेश्चंस मुझे श्योर नहीं थे, 50% वाला जो सीन है, कुछ देखो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। पहला मिलता है श्योर है भाई, आपने वही टिक कर दिया, सर्कल भी कर दिया, खत्म। कुछ ऐसे मिलते हैं कि जो बिल्कुल मतलब पहचान, कौन तू, मतलब मैं जानता ही नहीं हूं तुझे, उसको क्रॉस कर लो भाई, ये नहीं आने वाला। लेकिन मैक्सिमम सवाल ऐसे होते हैं जो 50% प्रोबेबिलिटी वाले होते हैं, तो उनको सर्कल करके रखो कि भाई वापस आ रहा हो तुझे मिलने। अभी थोड़ा सा ये है, ए और सी में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बी और डी में कंफ्यूजन है, लेकिन बाद में मिलता हूं। तो उन सवालों को आपको एक्चुअली लास्ट के 35 मिनट्स में अप्रोच करना है और कोशिश करना है कि जहां जहां 50% प्रोबेबिलिटी हो अटेम्प्ट करो ही। वो क्यों अटेम्प्ट करना है वो एक अलग कैलकुलेशन है, वो फिर कभी बताऊंगा। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि वो अटेम्प्ट होना चाहिए, और वो तभी होगा जब आप दूसरे राउंड के लिए रेडी रहोगे। अगर आप एक ही राउंड 2 घंटा खत्म करोगे तो देन यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू द पेपर, राइट। व्हाट यू डू इज 1.5 घंटा में आप खत्म करो पहला राउंड, और दूसरे राउंड के लिए फिर जाओ उन क्वेश्चंस की तरफ जो सर्कल किए, राइट। तो ये आपका काम है कि इस तरह से आपको करना है। अब ये एग्जाम के दिन नहीं होगा, अभी से इसको करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पेपर की स्ट्रेटेजी कैसी है कि कम से कम उसके लिए पहले तो 4 घंटा निकालो। अब 4 घंटा क्यों भाई, देखिए 2 घंटा तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, कितना भी आपको लगे हो गया, बस अभी नहीं करना है, फिर भी बैठो पूरा टाइम लगा के देखो कि भाई अरे नहीं ये वापस आप अटेम्प्ट कर सकता हो। 125 क्वेश्चन एक जगह पे 2 घंटा बैठ के सॉल्व करो। अरे भाई 1 घंटा बैठने की आदत ही नहीं है, 2 घंटा बैठने की आदत नहीं है, मोबाइल को साइड में रखो। दिन के जो 5 घंटे है ना, पेपर 2 के 3 घंटे और पेपर 2 के 2 घंटे, सॉरी पेपर 2 के लिए तो 3 घंटे देना है, और ये पेपर 1 का 4 घंटे का, 7 घंटे तो आपके यही हो गए। 12 घंटे में से अगर 7 घंटे यही चले जाएंगे, बचे सिर्फ 5 घंटे, उसमें आपको पढ़ना है सिर्फ। फिर करंट पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो, नोट्स निकालो, रिवाइज करो, जो भी करना है। 7 घंटे का शेड्यूल तो मैं दे रहा हूं भाई। पेपर 2 लिखो, ऐसे लिखो, आर्गुमेंट राइटिंग लिखो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करना कि पेपर 2 का क्वेश्चन पेपर दोपहर 2 से 5 के बीच में सॉल्व करके देखना, क्योंकि वो जो टाइम होता है खाना खाने के बाद का, एकदम मतलब लाइक एक्सेलेंट टाइम होता है, जिसमें नींद आती है, एकदम परफॉर्मेंस खराब होता है, उस वक्त आपको एक्चुअली पेपर 2 लिखना है एक्चुअल एग्जाम में। तो उसी ड्यूरेशन में एक्चुअली पेपर 2 पे काम करो। फिर 4 घंटे की शेड्यूल में सबसे पहले 2 घंटा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, सेकंड राउंड भी किया, कोशिश करो थर्ड राउंड करने का। 2 घंटे के बाद रुक जाओ, आंसर शीट निकालो, चेक करो आंसर्स। बिल्कुल ये मत सोचो सर मेरे तो 25 ही मार्क आ रहे हैं, मेरे तो सर 35 ही मार्क आ रहे हैं, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। चेक करो सही कितने आए, गलत कितने आए, 50% वाले कौन से थे, उसमें से कौन से सही आए, कौन से गलत आए, और अब करो क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। और उस तरह से पढ़ना है। एक क्वेश्चन आया, अच्छा ये गलत हो गया, यार ये तो पढ़ा था, फिर क्यों गलत हुआ, कहां से है, ज्योग्राफी, अच्छा ये तो मुझे लगता है एनसीईआरटी में है, फिजिकल ज्योग्राफी, निकालो वो चैप्टर, देखो कहां वो मिल रहा है। गलत हुआ है ना तो पढ़ने में मन भी लगेगा, फोकस वहां जाएगा। देखो कहां है वो, उसके आसपास का भी थोड़ा पढ़ लो, फिर वापस जाओ, अच्छा अगला क्वेश्चन ये कहां से है, अच्छा ये तो एंशिएंट इंडिया का है, अरे ये तो न्यू एनसीईआरटी में पूछा है, शायद कहीं तो भी दिया होगा। खोलो पेजेस पलटो, वो पेजेस पलटते पलटते 2-4 चीजें इधर उधर भी पढ़ लेते हैं, अपने आप रिवीजन हो जाती है, बोर भी नहीं होता। फिर देखो अच्छा यहाँ ये यार कैसे मैं भूल गया, तो पढ़ा था मैंने। जब गिल्ट खड़ी होती है और गिल्ट में से जवाब मिल जाता है ना, उसके बाद वो याद भी रहता है। ऐसे एक एक क्वेश्चन को एनालिसिस करो। अगर जो सवाल गलत आया है, तुक्का मार के गलत आया है, सोचो कि उस वक्त मैंने क्या सोचा तुक्का मारते वक्त, अरे यार अगर मैं इसकी जगह इस तरह से मेरी सोच रखता तो मैं सी करेक्ट करता, और सी तो सही जवाब था। इनफैक्ट मैं तो यहां तक बोलता हूं, जो सवाल सही किए हैं उनको भी ध्यान से देखो कि ये सही किया है, लेकिन क्या मैं श्योर था कि मैंने तुक्का मारा है और ये सही आया है, तो उस वक्त मैंने क्या सोचा, ओके तो इस तरह से मुझे सोचना है। हर एक क्वेश्चन को एनालिसिस करो, उसके लिए 2 घंटे दे जाएंगे आप, 4 घंटे 4.5 घंटे समटाइम्स तो इसी प्रोसेस में चले जाएंगे आपके। और यही अप्रोच है जिसको अभी फॉलो करना चाहिए। जितने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जितने PYQ सॉल्व करेंगे, लेट इट बी पेपर 1, लेट इट बी पेपर 2, your chances of getting selected are higher. If you are not solving question papers, nothing is going to happen in your life, at least in case of CAPF, trust me. क्वेश्चन पेपर उठाओ, 2 घंटा बैठो, उसको सॉल्व करो, आंसर निकालो, देखो कि भाई कितने मार्क्स मिल रहे हैं, अपनी औकात कहां तक है, फिर ओके कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डिमोरलाइज नहीं होना है। सोचना है कि क्वेश्चन पेपर जो है वो एक किताब की तरह है, मुझे वहां से इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, उसको उस एंगल से देखो, सही कितने हुए, गलत कितने हुए, तुक्का कहां मारा है, कौन सा, अरे यार ये तो सिली मिस्टेक था, ओके लेकिन इसका जवाब क्या है, अरे इसका जवाब तो ये है,
फिर वहां गए, फिर मतलब आसपास किताबें लेके बैठो, फिर वहां रेफरेंस ढूंढो। इस सब प्रोसेस में क्या होता है पता है, आप इतने बिजी होते हो, इतने ऑक्यूपाइड होते हो कि जो नर्वसनेस वाली चीज है, एग्जाम में मेरा नहीं होगा तो क्या होगा, ये सवाल मतलब ये ख्याल आने के लिए आपको मतलब यू डोंट हैव टाइम। अपने आप को बिजी करो, आपको ये सब सोचने मतलब बस 3 घंटा पेपर 2 के लिए देना है, रोज 4-4.5 घंटा पेपर 1 का क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बाकी के 5 घंटे को पेपर 1 करना है आपको। 5 घंटे पेपर 1, 3 घंटा पेपर 2 और 4 घंटा पेपर 1 की प्रैक्टिस। बैलेंस, कंप्लीट बैलेंस, राइट। सो दिस इज योर आंसर फॉर बैलेंस ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2, राइट। सो ये मेजर क्वेरीज थी जो बच्चे ने पूछी है। एक आखिरी चीज जो मुझे लगता है जो एड्रेस होनी चाहिए, जो नर्वसनेस वाला प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हाउ टू कीप आवरसेल्फ मोटिवेटेड एवरी डे। यूट्यूब पे आप कितने भी सेशंस देख लो, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बोलते हैं और बहुत कुछ करते हैं, विच इज फाइन, मतलब वो बुरा नहीं है, लेकिन आप कितना भी किसी को भी सुन लो, 2-3 दिन के ऊपर वो नहीं दिखता है, ठीक है, 8 दिन से ज्यादा वो नहीं दिखता है। तो मैं एक ही चीज आपको बोलना चाहूंगा कि कल से बेहतर आज करना है, ये सोच के रोज सुबह उठो। कल से बेहतर आज करना है, ये सोच के रोज सुबह उठो, अपने आप को टारगेट दो। किसी दिन अगर ये लग रहा है कि नहीं करने का मन है तो 2 घंटा सच में कुछ मत करो, सच में कुछ मत करो, लेकिन गैजेट्स के आसपास मत घूमो, थोड़ा नेचुरल सेटिंग में जाओ, थोड़ा सा है ना, नेचर के जितना करीब जाते हो उतना रिफ्रेश होकर हम लोग आते हैं। योग अगर आप करते हो, योगासन अगर आप करते हो तो वो आपके लिए बेहतर है, मेडिटेशन करते हो तो वो बेहतर है, कुकिंग करो, मदर को हेल्प करो, अपने जो पहचान वाले हैं उनसे थोड़ी बात करो, पॉजिटिव सारी चीजें, है ना, थोड़ा कूल रहो। बहुत ज्यादा गैजेट्स, मूवीज, यूट्यूब भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो भी आपको अलग एक तरीके का प्रेशर ही देता है, सो दैट इज नॉट गुड एक्चुअली। तो एक ही चीज अपने आप को मोटिवेट करने के लिए जरूरी है। देखो अभी तो बेस्ट मोटिवेशन, मतलब मैं खुद जिस बंदे को फील कर रहा हूँ, यू माइट हैव सीन राफेल नडाल विनिंग फ्रेंच ओपन with the kind of problem he was facing in his foot, right? So he was taking those nerve injections, and with that he actually fought in the finals of French Open. उसके बाद he was on crutches. So yeah, I mean, and still he's planning to go for Wimbledon. So we have such heroes actually, who are actually striving very hard. Even after all these success in their life, they still want more. तो वो जो भूख है वो होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि कल जितना क्या था उससे आज मैं बेहतर हूं, आई एम अ बेटर पर्सन और आई एम बेटर स्टूडेंट सिंस लास्ट मंथ। मैं रोज अपने आप को एक्सेल करने की कोशिश करता हूं, इसके ऊपर ध्यान दो। किसी दिन आप 12 की जगह 14 घंटे फ्लो में पढ़ाई कर लेते हो, 12 मतलब मिनिमम 12 है, मैक्सिमम 14 तक भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मर नहीं जाओगे। कोई भी आदमी आज तक पढ़ाई करने की वजह से नहीं मरा है, तो चिंता मत करो, कुछ नहीं होता है ज्यादा पढ़ाई किया तो अगर किसी दिन आपने 14 आवर्स स्टडी किया होगा एकदम फ्लो में, तो उस चीज को अपना ये बनाओ कि भाई ये मेरा आइडियल था, इस तक जाने की कोशिश मुझे रोज करनी है ना। अपने दोस्तों से बात करना, मेंटर से बात करना, ये सब अच्छी चीजें है। तो कोई स्पेसिफिक मोटिवेशन लेक्चर मेरे पास नहीं है, बस कल से बेहतर करने की कोशिश में करूंगा, ये सोच के कीजिए। जो चीजें मैंने आपको अभी बोली है वो कीजिए, ताकि आप बहुत बिजी हो जाएगा, आपके पास टाइम ही नहीं मिलेगा, है ना। और कुछ क्वेरीज मैंने एड्रेस करने की कोशिश की, इस तरह से प्रिपरेशन कीजिए। पेपर 2 अगर बात करते हैं, आखिरी में जाते हैं पेपर 2 के बारे में बात करूंगा कि आर्गुमेंट राइटिंग लिखो, ऐसे लिखो, एक जगह पे बैठ के लिखो, एक जगह पे बैठ के लिखो, 2 ऐसे लिखो, 3 ऐसे लिखो, 4 ऐसे लिखो, बैक टू बैक लिखो, बैक टू बैक 2 आर्गुमेंट लिखो, बैक टू बैक 2 रिपोर्ट लिखो, तब उसको बोलते हैं प्रिपरेशन। इसलिए बोला 3 घंटे। लोगों को लगता है सर 3 घंटे बैठ के पेपर 2 करे क्या, लिखो, इतना लिखो। वही ऐसे एक ऐसे लिखा लेकिन लगा कि मजा नहीं आया, दूसरे दिन वही ऐसे सेम ऐसे लिख के देखो तो फिर पता चलता है एक्सीलेंस क्या है। अगर आप इस तरह से करते हैं तो nobody can stop you from achieving what you want. Strive for excellence. Okay? All the very best, and I'll see you soon before the exam. Okay? Take care and follow the strategy. And be restless. That's fine. Don't worry about that. See you. Bye.